Okay. Hey guys, hello everyone. I'm Rajit and I'm an alumni of ISI Kolkata with 5+ years of teaching experience, and I have selections in IITs, ISIs and many Olympiads. If you wish to reach me, you can contact me on Telegram with this ID, and my mail is rajat.goyal@vedantu.com. Okay. So for the amazing content like today which I've brought for you, don't forget to subscribe the Vedantu Olympiad School channel. So let's start. Today I have brought you the multi-conceptual equation which is covering many, like 4 different concepts of calculus. So this is a previous year, and again, many places where I saw this solution, either the solution was not there or the solution was wrong. So I thought, okay, let's bring the right solution to everyone and see how amazing this problem is. So a problem with 4 concepts of calculus. So let's check this out. So what does the problem say? You are given a function f which is from close 0 to infinity to real numbers, and this is a non-decreasing continuous function. This is a non-decreasing continuous function. Then we have to prove this just with the information that this is a non-decreasing continuous function. Just using this fact, we have to prove this statement, that mod of z minus x integral y to z f of u du is greater than or equal to z minus y x to z f of u du, which holds for any, like there's no bounds on x, y, z, just this relation that x will be less than y less than z and all are greater than or equal to 0. Okay, so before starting, let's check this out a little. What is happening in this equation? So if I see here z and x terms are on the right hand side and the z and y integral is on the left hand side. So let's rearrange this to write it as integral y to z f of u du by z minus y greater than or equal to integral x to z f of u du by z minus x. Now changing the sides, our sign of inequality didn't affect, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा. Reason being z minus y positive है because z is greater than y, and z minus x is also positive because z is greater than x. Okay, so basically we have to prove this thing. And ये तुम्हें देखो, तुम्हें दिया हुआ है कि f of x और basically f is a non-decreasing continuous function. तो अगर ये non-decreasing है और देखो यहाँ पे भी inequality का साइन है, तो क्या पता इनमें कोई रिलेशन हो. लेट्स ट्राई टू फाइंड दैट आउट कि क्या हम नॉन डिक्रीजिंग पार्ट को, बेसिकली इंक्रीजिंग वाली चीज को, कैन वी यूज टू बिल्ड अप समथिंग लाइक दिस इन इंटीग्रल्स. तो लेट्स स्टडी कि इंटीग्रल फंक्शन यार होगा कैसा है इसका. सो लेट्स ट्राई इट. तो यार एक चीज देखो, अगर मैं फंक्शन डिफाइन करूं जस्ट फॉर माई सिंप्लिसिटी, g ऑफ x इक्वल्स इंटीग्रल 0 से x f of t dt. Now using the fact that this is non-decreasing, I can say one thing, that just a minute, says that f dash x is greater than or equal to 0. तो अगर मुझे इसके f dash के बारे में पता है तो हम क्या करते हैं, let's reach towards the derivative of f. तो अगर हम यहां पे देखें तो g of x is 0 से x f of t dt. तो g dash x by the first fundamental theorem of calculus ये एक एरिया फंक्शन की तरह डील कर सकते हैं, एंड देन g dash x is f of x. एंड अब हमें तो इंफॉर्मेशन है f dash x के बारे में. सो g double dash x, अगर एक और डेरिवेटिव लिया, this equals f dash x, where f dash x is positive. So the concept one which was used, that this is a non-decreasing function, तो derivative will be greater than or equal to 0. And इधर देखो तो तुम्हें यहां पे मिला कि यार g double dash x, this is greater than or equal to 0. This is greater than or equal to 0. तो क्या मैं कह सकता हूं कि g, अगर g double dash x मेरा greater than or equal to 0 फंक्शन है, so this is a convex function.
convex function, basically a function which is opening upwards like this. तो यहां से मेरे पास आ गया that this is a convex function. Okay, and अब देखो कि अगर मैंने वो फंक्शन कंसिडर भी क्यों किया, बिकॉज एवरी सिंगल टर्म बोथ द इंटीग्रल्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू द इंटीग्रल फॉर्म. कैसे? जी की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे? सो कहना इसे जी ऑफ जेड माइनस जी ऑफ यू, और आई से जी ऑफ वी, सॉरी, g of z minus g of y. This is nothing but integral 0 से z f of u du minus integral 0 से y f of u du. Basically, this is equal to integral y से z f of u du. तो जो हमारी ये वाली टर्म है f of u y से z, दिस इज नथिंग बट g of z माइनस g of y, और जो ये वाली टर्म है हमारी, दिस इज g of z माइनस g of x. तो हमें बेसिकली g फंक्शन पे कमेंट करना है. सो लेट्स चेक दिस आउट. तो यूजिंग द फैक्ट दैट g डबल डैश x इज अ कॉन्वेक्स फंक्शन, तो अगर मैं थोड़ा ग्राफ टाइप ड्रॉ करूं कि कुछ कैसा सा दिखेगा. अगर ये कुछ ऐसा सा फंक्शन है, कॉन्वेक्स है और कॉन्केव अप है, तो अगर ये ऐसा फंक्शन है तो कहना इसे कि यार ये कोई जो पॉइंट होगा, ये होगा x कॉमा जी ऑफ एक्स, ये कोई पॉइंट होगा, अगर ये x वाला पॉइंट है, अगर ये y वाला पॉइंट है, सो दिस इज y कॉमा g ऑफ y, एंड लेट दिस बी z कॉमा g ऑफ z. अब ये देखो कॉन्केव अप को डिफाइन करने का तरीका भी क्या होता है, एंड बेसिकली तुम देख सकते हो, क्या मैं बोल सकता हूं कोई भी पॉइंट जो इस लाइन पे बैठा होगा, एनी पॉइंट, उसकी वैल्यू कर्व के हर फंक्शन की हर पॉइंट की वैल्यू से ऊपर होगी. सो कहने से इफ लेट्स से हम ये y वाला पॉइंट ही डिस्कस कर लें, सो इफ दिस इज डिवाइडिंग इट इन द रेशियो t/1, तो यहां से हमें क्या रिलेशन मिला कि x y z t/1. So we know tz plus x by 1 plus t, this equals y. And तो ये पॉइंट बोल दूं, ये कुछ होगा y कॉमा, अगर वो रिलेशन सेटिस्फाइड है, t इंटू जी ऑफ z प्लस g ऑफ x होल डिवाइडेड बाय t प्लस 1. तो मैं क्या बोल सकता हूं कि यार देखो ये वाला जो y कोऑर्डिनेट है, ये वाला जो y कोऑर्डिनेट है, दिस इज ग्रेटर देन g ऑफ y. सो यूजिंग दिस, कैन आई से दिस t टाइम्स g ऑफ z प्लस g ऑफ x बाय t प्लस 1, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू g ऑफ y. देखो क्या मैं बोल सकता हूं, इनफैक्ट ये जो इनइक्वालिटी है ना, इसका एक नाम भी है, दिस इनइक्वालिटी दैट ग्रेटर देन इक्वल टू थिंग, दिस इज कॉल्ड जेनसन इनइक्वालिटी, जो बोलती है कि इफ यू हैव अ कन्वेक्स फंक्शन, लाइक कॉन्वेक्स फंक्शन और कॉन्केव अप फंक्शन, तो कोई भी पॉइंट जो इस लाइन सेगमेंट पे बैठा होगा, उस पे y कोऑर्डिनेट की वैल्यू हमेशा हमेशा फंक्शन की वैल्यू से ज्यादा होगी, विच इज आई गेस ऑब्वियस ऑल्सो, तुम देख ही सकते हो.
तो अगर हमें वो रिलेशन मिल चुका है तो वी आर ऑलमोस्ट डन. चेक दिस आउट. हमें वो क्या रिलेशन मिला था? टी टाइम्स जी ऑफ जेड प्लस जी ऑफ एक्स बाय टी प्लस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी ऑफ वाई. जहां पे हमने टी कैसे डिफाइन किया था? सच दैट एक्स जिस रेशियो में वाई जिस रेशियो में एक्स और जेड को बांट रहा है दैट इज टी रेशियो वन. सो टी जेड प्लस एक्स बाय टी प्लस वन इज इक्वल टू वाई. अच्छा, तो अब हमें बताया कि टी पॉजिटिव है, वन पॉजिटिव है, तो दिस इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी. साइड चेंज कर सकते हैं. तो साइड चेंज करके कहने से अब साइड चेंज करके यहां पे आएगा टी प्लस वन. तो एक टर्म टी से मल्टीप्लाई होगी, उसकी साइड चेंज करके हम इधर ले आए. सो दैट इज टी टाइम्स जी ऑफ जेड माइनस जी ऑफ वाई. दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू, और यहां पे जी ऑफ वाई पड़ा है और जी ऑफ एक्स को हम इधर ले गए. सो दिस इज जी ऑफ वाई माइनस जी ऑफ एक्स. एंड एक काम करते हैं, टी तो हमें फाइनल आंसर में नहीं चाहिए ना, वी डोंट वांट टी इन आवर फाइनल आंसर, तो इसको ना चेंज कर लेते हैं, उसको एक्स वाई जेड की फॉर्म में चेंज कर लेते हैं. तो व्हाट इज टी जेड प्लस एक्स इक्वल्स टी वाई प्लस वाई एंड टी टाइम्स जेड माइनस वाई इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स. सो टी की वैल्यू आ गई है z माइनस वाई बाय वाई माइनस एक्स. ओके, तो मेरे हिसाब से वी आर ऑलमोस्ट डन नाउ. तो ये क्या लिखा हुआ है? t है हमारा z माइनस वाई g of z minus g of y and here it is greater than equal to, डिनोमिनेटर को इधर ले आए, y minus x is a positive term. So this is y minus x into g of z minus g of x. So can I say the result is proved? My result is proved. हमने क्या प्रूव किया? g of z minus g of y into z minus y. बेसिकली g of z minus g of y हमारा क्या था? g of z minus g of y हमारा क्या था? इंटीग्रल, दिस टर्म was our integral y से z f of u du. ओके, कुछ गड़बड़ हुई यहां पे, एक मिनट, शायद t की वैल्यू गड़बड़ हुई है. सो okay, sorry, yeah, t was y minus x by z minus y. हाँ, तो सॉरी वो गड़बड़ हो गई वहां पे. तो दिस was here y minus x and this was z minus y. तो अगर मैं इसको एक बारी इरेज करके दोबारा लिख दूं, अगर तुम्हारा t है y माइनस एक्स बाई जेड माइनस वाई, तो क्या बोल सकते हो g ऑफ z माइनस g ऑफ y. ये तो इंटीग्रल आपका बन गया y से z f ऑफ u du एंड t है तुम्हारा यहां पे y माइनस एक्स बाई जेड माइनस वाई. This is greater than equal to g of y minus g of x. ये तुम्हारा इंटीग्रल हो गया x से y f of u du और डिनोमिनेटर यहां पे चला गया z माइनस वाई. अब देखो तुम्हारे पास ये चीज प्रूव हो चुकी है. अब एक चीज नोटिस करो, यहां पे है z माइनस एक्स और यहां पे y माइनस एक्स, यही एक फर्क रह गया. तो नाउ कैन आई से
सर ये तो ऑब्वियस नहीं है कि यहाँ पे इसको आप इससे कंपेयर कर ही सकते हो। क्यों? सर z माइनस एक्स हमेशा y माइनस एक्स से बड़ा ही होगा ना, क्योंकि आपका y z से छोटा है, तो z माइनस एक्स इज ग्रेटर देन y माइनस एक्स। एंड यू सी दिस फाइनली प्रूव्स आवर इनइक्वालिटी एंड वी आर डन विद दिस क्वेश्चन। सो यू सॉ हमने इस क्वेश्चन में क्या क्या सीखा। एक जेंचर इनइक्वालिटी यूज हो रही है, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल आपकी यूज हो रही थी, एंड आपकी डिफरेंशियल की प्रॉपर्टीज यूज हो रही थी। सो दीज मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन ये एक ISI ने 2014 में पूछा था। So this is the solution to it, and I hope you enjoyed it. So this was the answer. So don't forget to subscribe VOS. Thank you.